اس ایک سال میں کافی تبدیلی آئی ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، گرلز ہاسٹل پہ کام کیا جا رہا ہے. جدید ریسرچ لیب بنائے گئے ہیں. کوئی ایشو تو ہم ڈائریکٹ سر کے پاس جا سکتے ہیں نا. السلام علیکم ناظرین، امید ہیں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے. آپ کی خدمت میں ایک بار پھر میں حاضر ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کا ایک سال پورا ہونے والا ہے. ہم دیکھیں گے کہ مختلف اداروں میں اس ایک سال کے دوران کتنی تبدیلیاں آئی ہیں. آج ہم آئے ہیں کوہاٹ یونیورسٹی میں اور یہاں پر لوگوں سے بات کریں گے، طلبہ و طالبات سے بات کریں گے کہ اس ایک سال کے دوران اس یونیورسٹی کی انتظامیہ نے طلبہ و طالبات کو کیا ریلیف دیا ہے، اس یونیورسٹی میں نیا کیا ترقیاتی کام ہوا ہے، اس یونیورسٹی کے موجودہ جو وائس چانسلر ہیں اور رجسٹرار ہیں انہوں نے کیا اس یونیورسٹی میں طلبہ کے لیے کچھ نیا ترقیاتی کام لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں. ان سب سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے آج یونیورسٹی میں ان طلبہ و طالبات سے بات کریں گے. جی ناظرین، اس وقت سب سے پہلے ہم ایک کوہاٹ یونیورسٹی کی طلبہ سے ملاقات ہوئی. ان سے بات کریں گے کہ یونیورسٹی کی ایک سال کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہتی ہے. سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور اپنا ڈپارٹمنٹ بتائیں. السلام علیکم. میرا نام جویریہ خٹک ہے اور میں بی ایس جرنلزم ماس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا، یہ بتاؤ جویریہ کہ آپ چونکہ سینئر اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ بتاؤ کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس ایک سال کے دوران یونیورسٹی میں آپ کو کیا نیا دیکھنے کو ملا؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپنی وائس چانسلر کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے لیے بہت ساری فیسلٹیز یہاں پہ فراہم کی. اور وائس چانسلر کا نام ہے ڈاکٹر نصیر الدین صاحب، جنہوں نے اس ایک سال میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹ اس یونیورسٹی میں کیا. لائک یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم پانی کا تھا، وہ ایشو ہمارا سالو ہوا. اور انٹرنیٹ لحاظ سے سولرائزیشن بھی ان لوگوں نے کافی لائک کافی زیادہ ان لوگوں نے اسٹوڈنٹ کو سہولتیں یہاں پہ فراہم کی ہیں. ان کی اسکالرشپس وغیرہ کی جو پرابلمس وغیرہ تھی ان میں بھی کافی زیادہ اسٹوڈنٹس کو اب سہولتیں مل گئی ہیں. تو اس ایک سال میں کافی تبدیلی آئی ہے. السلام علیکم جی، میرا نام محمد سلمان ہے. میں 7 سیمسٹر سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. جیسا کہ سر نے سوال کیا ہے کہ ایک سال میں ترقیاتی کام کیا ہوئے ہیں، تو جیسے کہ پروفیسر ڈاکٹر نصیر الدین صاحب جب سے یونیورسٹی میں آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کی صاف صفائی کا خیال بہت زیادہ رکھا جاتا ہے. اکثر باہر سے لوگ آتے ہیں تو یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے کہ آؤٹ سائڈر گیسٹ آتے ہیں تو اگر صاف صفائی نہ ہو یونیورسٹی میں تو یہ بہت زیادہ جو ہے تو برا سمجھا جاتا ہے اس چیز کو. اس کے علاوہ ترقیاتی کام آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں بلاک بن رہے ہیں، جہاں پہ کلاسز نہیں ہیں وہاں پہ کلاسز بن رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ملٹی میڈیا کا سسٹم ہر کلاس روم میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں الحمدللہ، اسی طرح سارے ڈپارٹمنٹ میں ہر کلاس روم میں ملٹی میڈیا کا سسٹم ہو گیا ہے. پہلے نہیں تھا، یہ اس سال کے دوران ہوئے. یہ نصیر صاحب کے آنے کے بعد اس چیز پہ کام کیا گیا ہے. ریسرچ لیب بنائی گئی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ، میرے پیچھے ریسرچ لیب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپ ٹو ڈیٹڈ سسٹم اس میں موجود ہیں اور چیئرز. اور اس کے علاوہ جو کلاس روم کے انوائرمنٹ کے لیے جو جو چیز ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ، صرف یہ نہیں کہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ، ڈاکٹر نصیر کے آنے کے بعد ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں یہ ترقیاتی کام جو ہیں تو سٹارٹ ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ نیو ڈپارٹمنٹس اوپن ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے جو مسائل تھے وہ وی سی سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، جو بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بتا سکتے ہیں. اور ہمارے جو فیکلٹی کے مسائل تھے وہ بھی حل ہو گئے ہیں. سر میرا نام عبداللہ سلیمان ہے اور میں بی ایس 7 سوشیولوجی سے ہوں. اچھا عبداللہ، آپ کا تو آپ سینئر اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ، تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے 3 سال تو ہو گئے، ابھی 14 سال ہے، تو اس سال میں آپ کو کیا نئی تبدیلی ملی ہے اس ایک سال کے دوران یونیورسٹی کی کارکردگی رہی ہے؟ یس سر، اس دفعہ بہت اچھی کارکردگی رہی ہے ہمارے میں. اگر آپ کو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بتاؤں تو پہلے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ میں اتنی پراپر نہ کلاسز ہوا کرتی تھی، نہ اس طرح کوئی بہت زبردست ٹیچر تھے نا. تو ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھی فیکلٹی ملی ہے، ہمیں بہت بیسٹ ماحول ملا ہے. میرا نام لائبہ اشتیاق ہے، میں جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کی 5th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا، یہ بتاؤ کہ یونیورسٹی میں ایک سال کے دوران آپ کو کیا نئی کارکردگی نظر آئی ہے؟ ایڈمنسٹریشن سے کتنے مطمئن ہیں وائس چانسلر اور رجسٹرار نے؟ کیا اسٹوڈنٹ کو نیا ریلیف دیے ایک سال کے دوران؟ جی، جب سے ہمارے وائس چانسلر آئے نا تو ہمارے کافی جو ایشوز ہیں جو سالو ہو گئے ہیں. یعنی پہلے تو ہم وائس چانسلر کے پاس جب جاتے تو سوچنا پڑتا تھا، ابھی کوئی ایشو تو ہم ڈائریکٹ سر کے پاس جا سکتے ہیں نا. کوئی ایشو جیسے ابھی نرسنگ میں کافی انہوں نے امپرومنٹ کیا ہے.
लॉ डिपार्टमेंट ओपन हुए, हमारे अपने डिपार्टमेंट में हमारे काफ़ी इश्यूज हैं जो हल हुए हैं। ये थी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की एक तलबा। उनका ये कहना है कि हम जो है मौजूदा जो इंतज़ामिया है यूनिवर्सिटी का, उनसे काफ़ी मुतमईन हैं। आगे जाते हैं और लोगों से भी राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं। अगर देखा जाए जब से हमारे रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब आए हैं, हर डिपार्टमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत कोऑपरेटिव बंदा है, स्टूडेंट का सुनता भी बहुत है और मसले मसाइल जो होते हैं उनके हल की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। और इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल रिव्यू की जाए तो मैं अपने डिपार्टमेंट से अगर शुरू करूँ तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो काउंसलिंग सेंटर की लेग थी नहीं थी, वो भी माशाल्लाह से अब उस पर काम शुरू है और कुछ दिनों में ये फाइनल हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे लिए जो लैब का मसला था वो भी हल हो गया है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी की ब्यूटिफिकेशन पे अगर बात की जाए तो नसीरुद्दीन साहब की इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस है। और एकेडमिक एक्टिविटी के साथ साथ नॉन एकेडमिक एक्टिविटी जो है हमारे पास स्पोर्ट्स है, अदर एकेडमिक नॉन एकेडमिक एक्टिविटी है, उसमें बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं और कंट्रीब्यूशन देते हैं। जी, मेरा नाम चांदनी, मैं 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अच्छा डिपार्टमेंट। चांदनी, ये बताओ कि एक साल के दौरान यूनिवर्सिटी के इंतजामिया में खसूसन वाइस चांसलर ने स्टूडेंट को क्या रिलीफ दिया है? कोई नई कारकर्दगी उन्होंने दी है स्टूडेंट को, या कोई नया रिलीफ दिया है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें हमारे डिपार्टमेंट में हमारी जो प्रैक्टिकल वर्क है हमारे लिए, तो सबसे पहले स्टूडियो हमारा जो कि ओपन रहता है हमारे लिए, और दूसरा उन्होंने वाइस चांसलर ने अति मतलब एक लॉ डिपार्टमेंट जो कि अभी रिसेंटली खुला है वो उन्होंने यहाँ पे खोला है, जिसकी वजह से यूनी की रैंकिंग अच्छी हो गई है। और ये जो लॉ डिपार्टमेंट है इसके लिए ज़्यादातर लोग इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर इन एरियाज़ पे जाते थे। अब यहाँ पे मतलब लोग यहाँ पे आएंगे और उनको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम अपने वीसी से और रजिस्ट्रार से बहुत मुतमईन है, और कारकर्दगी भी मतलब सही तरीके से जा रही है। एजुकेशन सिस्टम भी सही किया है यूनिवर्सिटी ने। यूनिवर्सिटी में 2 आवर डिपार्टमेंट भी शुरू है, उस पर काम शुरू है, और हॉस्टल में भी काम शुरू है। मेरा नाम उरूज सफदर है और मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। एमफिल फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और बीएस भी मैंने यहीं से किया है। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो आप सीनियर जी। स्टूडेंट हो। तो ये बताओ कि आप पिछले सालों की निस्बत इस साल यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी किस तरह है? आप कितने मुतमईन हैं और वाइस चांसलर से और रजिस्ट्रार से? जी, मैंने जैसे कि मैंने बताया कि बीएस भी मैंने यहीं से किया और अब एमफिल कर रही हूँ, तो पिछले काफ़ी सालों की निस्बत इस साल जो है कारकर्दगी काफ़ी बेहतर हुई है। बहुत सारी न्यू कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, गर्ल्स हॉस्टल पे काम किया जा रहा है और इसी तरह स्टूडेंट्स को बहुत फैसिलिटेट किया जा रहा है। और जो विजिटिंग फैकल्टी थी उनको कॉन्ट्रैक्ट पे किया जा रहा है, फैकल्टी में बेहतरी आ रही है, मज़ीद नए-नए काबिल टीचर्स रखे गए हैं, तो काफ़ी बेहतरी आई है। इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट हमारे वाइस चांसलर साहब को देना चाहूँगी मैं, डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब, क्योंकि स्टूडेंट अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको एक्सेस है कि वो वाइस चांसलर साहब को बता सकते हैं और उन पे वो एक्शन लेते हैं। अच्छा ये भी बता दो कि कोई तजावीज़ देंगे अपने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब को? बस यही कहेंगे कि स्टूडेंट को मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, और बाकी तो सब बेहतर चल रहा है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोहाट यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं। कोहाट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जो सवालात व जवाबात और एक साल की कारकर्दगी के हवाले से बात करने का सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ तलबा व तलबात से हमने बात की। उनका कहना है कि एक साल के दौरान यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है बेहतरी लाई गई है। उनका ये कहना था कि अभी इस वक्त एक यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट की एक नई बिल्डिंग पर भी काम जारी है। इस तरह लाइब्रेरी में भी बेहतरी आई है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जो है एक साल के दौरान जो है जब से नए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब ने चार्ज लिए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर में तब्दीली आई है। ताहम आगे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बेहतरी लानी चाहिए, या कौन सी जो है वो अब भी अच्छी नहीं है और स्टूडेंट और तलबा तलबात को उन पर एतराज़ात हैं। तो आगे जाते हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी तो वाइस चांसलर का नाम आपको पता है, क्या नाम? जी, प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब, उसका नाम है, और वो यहाँ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। एक साल के अंदर उन्होंने बहुत कुछ किया यूनिवर्सिटी के, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि फेस्टिवल अरेंज करना, प्रोजेक्ट है वो, सेमिनार्स करना, ख़त्म नबूवत, सीरतुन्नबी, इस्लामिक प्रोग्राम, ऐसे बहुत कुछ हैं जो वाइस चांसलर ने किए हैं जो पिछले लोगों ने नहीं किया है एक साल के दौरान। तो आप कोई तजावीज़ पेश करेंगे? मैं एक तजवीज़ पेश करूँगा कि वाइस चांसलर ने बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं, लेकिन इस वीडियो की वजह से उसमें एक अर्ज़ करता हूँ कि ये जो आप लोगों को एलाइड हेल्थ साइंस का जो वो नज़र आ रहा है, ये रजिस्टर नहीं है पीएनसी से। जो स्टूडेंट हैं वो अपने हक़ के लिए एहतजाज भी करते हैं, हर हद तक गए हैं, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिले हैं। तो बराए मेहरबानी वो रजिस्ट्रेशन अगर ये कर लें
तो बहुत अच्छी बात है। My name is Bisma Faisal from Department of Psychology in first semester. अच्छा ये बताओ कि यूनिवर्सिटी में एक साल के दौरान चूंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है फिर भी आपको इस साल के दौरान कोई नई चीज़ें देखने को मिली है? कोई नई चीज़ें जी बिल्कुल देखने को मिली हैं। पहले हम बहुत दफ़ा इधर विजिटिंग पे आ चुके हैं, बट यहाँ पे हमें कोई ख़ास कंस्ट्रक्शन वगैरह दिखाई नहीं दी। बट स्टिल अब जब हम यहाँ पे आए हैं, हमने मतलब स्टडी किया, तो मतलब ऐसा ऐसा हमें पता चल रहा है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और ये हॉस्टल साइड पे भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप क्या कहेंगे वैसे आपको क्या नाम है, कौन से डिपार्टमेंट से हो? जी, माय नेम इज़ यशफा फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन का, हमारे अपने डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, क्लासेस बना रहे हैं, लैब वगैरह बना रहे हैं, और भी बहुत सारे काम कर रहे कोई हैं। तजावीज़ देंगे अपने इंतजामिया को? जी बस ऐसे ही काम करते रहना चाहिए, और यूनिवर्सिटी वैसे भी अभी रैंकिंग में भी रैंकिंग पोजीशन पे आ गई है। सबसे पहली बात ये कि जो यहाँ पे जो वाईफाई का जो कनेक्शन था पहले बहुत ख़राब था। हम यहाँ पे आए थे लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हम ये वाईफाई कैसे कनेक्ट कर लें, और जब हम कनेक्ट करते थे तो वहाँ पे वो नेट काम नहीं कर रहा था। दूसरी बात ये कि जो पानी का जो निज़ाम था वो भी काफ़ी ख़राब था। जब प्रोफेसर नसीरुद्दीन साहब आए तो उन्होंने काफ़ी बेहतरी लाई, यहाँ पे न्यू जो फ्रेज़र थे वो भी यहाँ पे लगाएं। और तीसरी बात जो है वो ये है कि जो सोलराइजेशन का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतर हुआ। पहले बिजली नहीं थी, जो स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी मुश्किलात थी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो यहाँ पे आए थे कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन पहले काफ़ी मुश्किलात थी। जब वो यहाँ पे आए तो प्रोफेसर नसीरुद्दीन साहब जब यहाँ पे आए तो उन्होंने सोलराइजेशन का जो सिस्टम था ये बनाया यहाँ पे, और स्टूडेंट जो हैं इस सोलराइजेशन से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और चौथी बात ये है कि जो यूथ डेवलपमेंट सेंटर है वो भी यहाँ पे खोल दिया गया। इसके अलावा जो न्यू डिपार्टमेंट्स हैं कोहाट यूनिवर्सिटी में वो भी तकरीबन पहले आई थिंक सो इससे पहले 35 थे, जो पहले जो डिपार्टमेंट्स थे। जब प्रोफेसर नसीरुद्दीन साहब आए तो उन्होंने एक्सटेंड की, काफ़ी डिपार्टमेंट लेके आए। और इसके अलावा भी काफ़ी इशू थे जो इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो इससे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट दी, तो उनका भी प्रोफेसर नसीरुद्दीन साहब ने ये मसला हल कर दिया। इससे रिलेटेड जो नर्सिंग का जो मसला था रजिस्ट्रेशन का, उनके लिए भी काफ़ी जो मुश्किलात थी वो हल कर दी गई, क्योंकि जो उनकी रजिस्ट्रेशन थी वो नहीं हुई थी, वो भी उन्होंने वो जो उनकी जो फॉर्म्स थी या जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म्स भेजे जाने थे वो भी भेज दिए गए। वी साहब ने बहुत से काम किए हैं, विजिटिंग फैकल्टी को कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आए हैं। कस्क यूनिवर्सिटी की सोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा अब हॉस्टल के टेंडर अब हो चुके हैं, तो बहुत से काम किए वीसी साहब ने, और अभी इंशाल्लाह अब आगे भी देखेंगे। तो ये सारे काम इसी साल किए? जी इसी साल में ये सब काम नसीर साहब ने। इंतज़ामिया की कारकर्दगी बहुत आला किस्म की कारकर्दगी है, क्योंकि हमारे जो है डेवलपमेंट सेक्टर या जो हमारे रिसर्च सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत आला किस्म के काम हुए हैं। जदीद रिसर्च लैब बनाए गए हैं, और हमारे ये जो टीवी स्टूडियो है इसको भी रेनोवेट कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे हेल्थ सेक्टर में भी काम शुरू है, और स्पोर्ट्स सेक्टर में भी बहुत कारकर्दगी इस साल हमें देखने को मिली है। तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? ये किसके दौर में? जी बिल्कुल, ये हमारे जो है वीसी डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब के दौर में हुआ। उनकी अच्छी क्वालिटी जो हमें ये लगी कि स्टूडेंट को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता उनके ऑफिस में किसी भी वक्त जाके। अभी रिसेंटली मेरा इंटरव्यू हुआ था उनके साथ, मतलब बहुत ज़बरदस्त आला किस्म के इंसान है, बहुत हम्बल और शरीफ इंसान। सबसे पहले आप खुशामदीद कहते हैं, अपना नाम बताएं और कौन से सेमेस्टर हैं आपका? जी, मेरा नाम सजीला नाज है और मैं जो है 7th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की। मैंने यहाँ पे देखा है कि कारकर्दगी तो बहुत कुछ हुई है यहाँ पे जो है जो हमारा ये प्रैक्टिकल वर्क है ये भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, और जो हमारे और भी फैकल्टीज़ हैं और डीन्स हैं ना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में है, बहुत से इवेंट्स और बहुत से चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम जब पहली बार आए थे तो हमारे टीचर्स जो थे वो कम थे डिपार्टमेंट में, हमारे डिपार्टमेंट में मसले बहुत ज़्यादा थे। तो अभी जो है माशाल्लाह हमारी फैकल्टी बहुत वेल एजुकेटेड है, सारे PhDs डॉक्टर्स आए हैं और हम बहुत मुतमईन हैं। एक साल के दौरान आए? हाँ, एक साल के दौरान ये सब हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन जो है जनरल साहब
और वीसी साहब की बदौलत ये सब माशाल्लाह अच्छे से चल रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कोहाट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी में एक साल के दौरान क्या इनको नया मिला है, क्या इनको नए तरक्याती काम मिले, क्या इनको रिलीफ मिला है। आपको खुशामदीद कहते हैं, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि एक साल के दौरान यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने आपको क्या रिलीफ दिया है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ यशफा फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी क्लासरूम का बहुत इशू था। हमारी स्ट्रेंथ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है और क्लासरूम्स इतने नहीं हैं। तो जब से प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब आए हैं तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया हुआ है और हमारे लिए क्लासरूम्स बना रहे हैं। बस हमें वीसी से यही रिक्वेस्ट है कि क्लासरूम जो है वो मॉडर्न तरीके से बनाई जाए, जिसमें एलईडी वगैरह सब कुछ हो, जैसे मॉडर्न स्मार्ट रूम्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे टीचर्स का इशू था। हमारा कोर्स रहता था और हमारे टीचर्स असाइन नहीं हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब हमारे टीचर्स भी हैं और स्टडी भी अच्छे से जा रही है। इस वक्त एक और स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी के एक साल की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं। अपना नाम बताएं और कौन सी डिपार्टमेंट से हैं ये भी बताएं। ये भी बताएं कि एक साल की कारकर्दगी से आप क्या कितने मुतमईन हैं यूनिवर्सिटी के इंतजामिया से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़रीफ़ा फरमान। आई एम द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी। सो जब से हमारे पास वीसी बने हैं डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब, तो तब से हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम हुए। जैसे हमारे पास सेमिनार्स अरेंज होते हैं, हमारा जो लाइब्रेरी है वो भी एक्सटेंड हुआ है, कंस्ट्रक्शन की वर्किंग भी चल रही है और डिफरेंट स्पोर्ट गाला जैसे इवेंट्स भी हमारे पास कंडक्ट होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है एक स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, ये भी बताओ कि ये क्यों पहले नहीं हो रहे थे या इस साल ये मुनक्किद हुए सारे? पहले होते थे लेकिन इतने नहीं। लेकिन अभी इस साल में हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई हैं और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। ये भी बताएं कि आप वाइस चांसलर खुसूसन अपने यूनिवर्सिटी की इंतजामी को कोई तजवीज़ पेश करेंगे। फिलहाल तो मेरी नज़र में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि कोई चीज़ सही नहीं है तो इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि कोहाट यूनिवर्सिटी की एक साल की कारकर्दगी से आप लोगों को आगाह करें, जिसमें हमने मुख्तलिफ तलबा व तलबात की राय ली और उनसे जानने की कोशिश की कि कोहाट यूनिवर्सिटी की एक साल की कारकर्दगी कैसे रही और तलबा को कितने रिलीफ मिले। जिसमें यूनिवर्सिटी के तलबा व तलबात ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस एक साल के दौरान जब से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब ने वाइस चांसलर का चार्ज लिया, तब से मुख्तलिफ तरक्याती काम जो है वो देखने को मिले, जिसमें उनका कहना था कि फैकल्टी की प्रमोशन हो गई, जो विजिटिंग लेक्चरर थे वो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाए हैं। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ नए बिल्डिंग्स जिस पर कंस्ट्रक्शन काम भी इसी साल शुरू हो गया है, जिसमें IT बिल्डिंग हैं, जिसमें IT डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल हैं और इसी के साथ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को वसी बनाने के लिए उस बिल्डिंग पर भी तरमीयाती काम जो है वो जारी हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी बता चलूँ कि तलबा व तलबात का ये भी कहना था कि गुज़श्ता कई सालों से नर्सिंग का MLT का और DPT का मसला चल रहा था, वो भी इसी यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर ने हल किया है। इसी के साथ साथ बड़ा काम जो मौजूदा इंतज़ामिया ने किए हैं वो इंटरनेट का तलबा का बड़ा मसला चल रहा था। यूनिवर्सिटी का इंटरनेट गुज़श्ता कई सालों से ख़राब था। वो तलबा व तलबात का कहना है कि इसी साल वो मसला जो है वो उसमें बेहतरी लाई गई है और उसको ठीक किया गया है। नाज़रीन, आप लोगों को मैं बताया चलूँ कि एक साल की कारकर्दगी के हवाले से हमने कोशिश की कि आप लोगों को आगाह करें। तो आप लोगों को बताया चलूँ कि इसी एक साल के दौरान इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे वो प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब थे। उनके हवाले से जो है ना सिर्फ तलबा के फैकल्टी ने काफ़ी खुशी का जो है इजहार किया, उस पर इत्मीनान का इजहार किया। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक अपने दोस्त मोहम्मद इब्रार हटक और साथी कैमरामैन मुनाज़र हटक और मेदरा हटक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।